So this Navshakti Durgotsav, it has 9 days, 9 Shaktis and 9 life skills for our Durgas. So every day we have 3 projects, Meri Beti Meri Shan, Navratri Arogya Sutra and Navshakti Durgotsav. So the first project for the day is Meri Beti Meri Shan, which is a NOGS Amox awareness campaign. So let us see what our fellow gynecologists have to say. A very dear friend and a gynecologist, Dr. Yamini Kaye. She is a proud mom of 2 daughters and she says, respect women, save the girl child, she is the future of the world. A senior gynecologist, Dr. Alka Mishra ma'am, she is a proud mom of 1 daughter and she says, daughters are the most prized possession of parents, teach them and save them. Past president of NOGS, Dr. Kanchan Sorte ma'am, she is a proud mom of 2 daughters and she has given a very beautiful meaning to the word daughter. She says they are darling, angel, they give us unconditional love, goodness, happiness, they are our true friends, they are an everlasting gift and they make our life a rainbow. So nurture her, love her, rise and shine with her. The next project for the day is Arogya Sutra. So today is day 4 of Navratri, and our Arogya Sutra for today is adolescent health. So children between the age group of 10 to 19 years are called as adolescents, and it is time to prioritize adolescent health because it is a very stressful period of life. So as a family, we have to promote healthy behavior, that is nutritious diet and physical activity. Parents should not criticize but communicate with them, treat them with respect, be there confident. Because yes, adolescents are the future. And last but not the least, the last project of the day is life skill lessons. So today we have a very esteemed speaker amongst us, Dr. Nishikant Kotwal sir. Sir is going to throw a light on very sensitive topic these days, that is battling depression. I want to live. This entire idea is brainchild of our very lively and zestful NOGS President Vaidehi Marathe ma'am. I invite ma'am for her welcome note. थैंक यू सो मच स्वधा. आज के प्रमुख वक्ता डॉक्टर निशिकांत कोतवाल सर, माननीय चेयरपर्सन मैम डॉक्टर उर्वशी यशोराय मैम, सभी कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स तथा कोऑर्डिनेटर्स और मेरी प्यारी छोटी छोटी सहेलियों, मैं डॉक्टर वैदेही मराठे, प्रेसिडेंट नागपुर ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी, आप सभी का इस नवशक्ति दुर्गोत्सव में स्वागत करती हूँ. माँ दुर्गा, she is a symbol of women power and strength, and that is why we worship the माँ with so much dedication. माँ दुर्गा ये स्त्री शक्ति का एक असीम रूप है और हम बड़े ही आत्मभाव से उसको पूजते हैं. दुर्गा माँ का हर एक अवतार स्त्री शक्ति का एक प्रतिबिंब है और इसीलिए हमने भी सोचा क्यों ना दुर्गा माँ के 9 अवतार 9 शक्तियों को हम अपनी नए जनरेशन को, यंग जनरेशन को समर्पित करें. और इसी भावना से जन्म हुआ हमारे नवशक्ति दुर्गोत्सव का. इन 9 दिनों में हम हमारी बच्चियों को 9 लाइफ स्किल सिखाएंगे जो उनकी लाइफ के लिए बहुत ही जरूरी है. और अभी तक हमने स्पिरिचुअल अवेकनिंग, I want to today we have I want to live, spiritual awakening, no means no and leadership qualities पे 3 सेशंस कंडक्ट किए और वो बहुत ही सक्सेसफुल थे. आज हम लोग बात करेंगे बैटलिंग डिप्रेशन, बैटलिंग सुइसाइडल थॉट्स, सेइंग आई वांट टू लिव. ऐसे अलग अलग महत्वपूर्ण विषयों पे आगे भी चर्चा होती ही रहेगी. बहुत बहुत धन्यवाद आज के प्रमुख वक्ता डॉक्टर निशिकांत कोतवाल सर का, जिन्होंने अपने बहुत ही बिजी समय शेड्यूल में से हमें आज वक्त दिया. दिल से धन्यवाद आज की चेयरपर्सन मैडम डॉक्टर यशोराय, जिन्होंने आज हमें ये फंक्शन को ग्रेस किया है चेयर करने के लिए. विल बी वेरी वेरी थैंकफुल टू हर एंड विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू हर वेरी वैल्यूएबल इनपुट्स. और आप सबका ज्यादा वक्त नहीं लूंगी. लेट्स गेट स्टार्टेड. आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन to this never before Navshakti life skill session. Thank you so much. So let us begin with today's session. I would like to say a few lines. कोमल है, कमजोर नहीं, तू शक्ति का नाम ही नारी है. जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है. तू ही दुर्गा, तू ही चंडी, तू ही है महाकाली.
तू ही मंगला, तू ही शिवानी, तू सबसे शक्तिशाली. Let us all defeat the fear of failure and evolve in our life as winners. So today we have a very energetic and prolific speaker amongst us, Dr. Nishikant Kotwal sir. So it gives me great honor in introducing you. Sir is a member of West Zone Adolescent Health Academy, representing Maharashtra, Goa, and Gujarat. Sir is a director of Adolescent Counseling and Education Institute. He is director of Colors Children Hospital and Manorama Children's Hospital. He has experience of 5 years in adolescent counseling. He is working in Colors Children Hospital since last 31 years. Sir has conducted many nursing workshops, adolescent workshops, and workshop for teachers and parents too. We welcome you, sir. Thank you. The chairperson for today's session is Dr. Urvashi Yashorai ma'am. She is principal of Tuli College of Hotel Management. We are very honored to have her chair this session. Over to you, sir. Okay. Am I supposed to start now? Everybody is ready? Can you hear me? Yes, sir. Can you hear me? Yes, sir. Okay. Now, should I start my lecture? I thought that probably the chairman is going to speak something about the program. Okay. Thank you very much. Thank you very much, Swada, for introducing me, and Vaidehi for introducing me. मैं जब यहाँ आया तो मुझे लगा कि मुझे कोई पहचानता नहीं है, तो मेरी इज्जत जाने की कोई खतरा ही नहीं है, क्योंकि जिसे पहचानता ही नहीं उसकी इज्जत क्या जाएगी. मगर जब भी हमारे जीवन में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो हमें बहुत कुछ लगता है कि मेरी इज्जत चली गई, मेरे खानदान की इज्जत चली गई, मेरे लोग क्या बोलेंगे, और ये हमें खामखा इस इज्जत के नाम से डरते हैं. कल ही मैं सुन रहा था, डॉक्टर चारी ने बताया कि हाउ टू से नो, तो मुझे एकदम याद आया पुराने इसमें एक कहावत है, मौनम सम्मति लक्षणम. जब भी कोई लड़की या कोई भी लड़का जब नहीं बोलता है तो उसे हाँ कहा जाता है, मौनम सम्मति लक्षणम. इसीलिए हमें कोई भी चीज पे, क्या आर यू एबल टू हियर मी और शुड आई इंक्रीज माय वॉल्यूम? ओके. मुझे लगता है कि वी हैव टू टॉक, हमें बात करना चाहिए, हमें हमारे मन की बातें एक्सप्रेस करना चाहिए, हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए इसके बारे में बताना चाहिए. हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए, और हमें ये भी मालूम होना चाहिए हमें क्या नहीं चाहिए. हमें मालूम होना चाहिए कि हम क्या पा सकते हैं, और हमें मालूम होना चाहिए कि हम क्या नहीं पा सकते हैं. सपने देखना तो सबने करना चाहिए, मगर जैसे प्यार करना चाहिए हम बोलते हैं, सपने देखना चाहिए, मगर सपने के बाद में हमें जमीन पे उतर के ये भी देखना है कि हमें क्या मिल सकता है. इसीलिए हर पिक्चर में देखो हीरो हीरोइन ऐसे दिखाते हैं और आखिर में बेचारा हीरो को हीरोइन मिलती है. तो सपने देखना ये बड़ी बात है, और सपनों को साकार करना ये बड़ी बात है. इसका मतलब ये नहीं है कि अपने सपने साकार नहीं हो सकते हैं. अब पुराने जमाने की बात है कि सावित्री ने सत्यवान को मौत से वापस लाया. ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मेरे को कुछ माइथोलॉजी की स्टोरी बताना है, मैं इसलिए बोलता हूं कि इसका मतलब है कि सावित्री ने ये नहीं माना कि मेरा पति मरना चाहिए. वैसे हमने हमारे खुद के लिए ये मानना नहीं चाहिए कि बस हम इस परिस्थिति से निकल नहीं सकते और हमें मरना चाहिए. इसीलिए मैंने आज के मेरे लेक्चर का टॉपिक का नाम रखा है आई वॉन्ट टू लिव. क्यों हम भी ऐसा सोचे कि सुइसाइड प्रिवेंशन होना चाहिए? क्यों हम ये नहीं सोचते कि हमने जीने के लिए क्या करना चाहिए? क्यों हम नहीं ये सोचते कि मुझे जीना ही है? हाँ, ये मैं मानता हूं कि दुनिया भर में 1 मिलियन लोग आत्महत्या करते हैं. आपको ये मालूम है कि 1 मिलियन लोग आत्महत्या करने के पीछे 20 मिलियन फेल्यूर आत्महत्या रहती है, और वो 1 मिलियन जो सुसाइड होते हैं उससे 120 मिलियन लोगों पे उसका प्रभाव पड़ता है. We all are happy to discuss the cause of his suicide, but we never say this is not worth dying. ये सही बात नहीं है कि इसने मरना चाहिए.
इसने जीना ही चाहिए। वी कीप ऑन ग्लैमराइजिंग दिस वर्ल्ड। अब जीने में क्या रखा है, मैं क्यों जीऊं? क्योंकि मेरा दोस्त छोड़ के गया, मुझे मार्क्स नहीं मिले, या रिलेशनशिप में फेलियर हो गया, वगैरह वगैरह। वी डिड सी, डिड यू ऑल सी, हिंदी पिक्चर तो आप देखते होंगे। आई वुड लाइक टू म्यूट सम पीपल, टू म्यूट एटलीस्ट वैदेही एंड सोदा, यू कैन म्यूट, सो यू कैन एड अप। हम देखो हिंदी पिक्चर देखते हैं और उसमें डांस सीक्वेंस होता है। डांस सीक्वेंस में हमारा कंसंट्रेशन हीरो हीरोइन पे होता है, मगर किसी ने देखा है कि वो हीरो हीरोइन के पीछे कितनी लड़कियां नाचते रहती है? और आप सब लोगों को लगता है क्या वैदेही कि वो लोग साइड हीरोइन बनने के लिए आई हैं और ये काम करने के लिए आई है? वो किस काम के लिए आई है, कोई बताएगा? सब हीरोइन बनने आते हैं सर। हीरोइन बनना है, हीरोइन बनना है। नोबडी कम्स टू डू साइड हीरोइन जॉब। तो जिंदगी में हम चाहते एक हैं, बनते एक हैं। क्या वो साइड, जिनके ये सपने साकार नहीं होते, वो लोग क्या सब मर जाते हैं? वो सपने साकार नहीं होते, वो लोग क्या घर चले जाते हैं, या मौत यानी सुइसाइड कर लेते हैं? नहीं है। एक आइटम गर्ल रहती है, देखो, या डांस में, डांस बार में ऐसे डांस करते हुए दिखाते हैं, वो भी लोग हीरोइन बनने के भी लिए आए हैं। मगर इनमें से ही कोई लोगों का सपना साकार होता है, और ये विश्वास पे ही वो काम करते रहते हैं। कैन एनीबडी टेल मी कि जो ऐसे आइटम गर्ल से होने के बाद में जो सिर्फ उसके आर्ट से ही जानी गई, ऐसे एक व्यक्ति का नाम बताओ। वैदेही, हेलन इज वन ऑफ द गर्ल हु हैड कम डाउन एज ए कैबरे आर्टिस्ट। और हुआ क्या, हम तो उसका कैबरे देखना तो भूल गए, उसके आर्ट ऑफ डांस की तरफ ही देखना चालू कर दिए। सो शी बिकेम अ सिंबल। तो जब वो ऐसे आइटम गर्ल का काम करती है थी, तो उसे भी तो बुरा लगता होगा, क्योंकि वो भी तो सुंदर है, वो भी तो हीरोइन बनने के लिए आई है। आपको क्या लगता है कि जो लोग सब नीट के लिए बैठते हैं या सीईटी के लिए बैठते हैं, तो वो लोग पास हो जाते हैं, उनको जो चाहिए वो मिल जाता है? नहीं ना। फिर क्या वो सब सुइसाइड करते हैं? कभी नहीं। हम गली के क्रिकेटर को देखते हैं, इन सब गली के क्रिकेटर को क्या बनना है? नेशनल टीम में। मगर नेशनल टीम में जाने का सपना कितने लोगों का साकार होता है? दे ऑल कांट मेक इट। सो जिंदगी में हमें जो चाहिए वो हर बार मिलेगा ऐसा नहीं है, मगर फिर भी तो हम जीते हैं। तो क्यों ना हम अच्छे तरीके से जीना चाहिए। अगर हमें कुछ नहीं मिला तो वी गेट डिप्रेस्ड, ये एडमिशन नहीं मिली, वो एडमिशन नहीं मिली, ट्यूशन क्लास में मेरे को एडमिशन नहीं मिली, मार्क कम पड़ गए, और हम इसी चीज पे रोते रहते हैं। हम क्यों नहीं सोचते कि मार्क मिले कम, मगर हमने कोशिश तो पूरी की थी, और हमने कोशिश और करना चाहिए। हम दीवार पे चढ़ने वाली स्पाइडर की तरफ देखो। जो स्पाइडर हमें दीवार के ऊपर ऊंचाई पे चढ़ा हुआ दिखता है ना, वो कितने बार गिरता है, मगर हर बार वो समझता है कि नहीं, मैं ये दीवार तो पार करके जाऊंगा ही। वो वहां खुदकुशी नहीं करता, कभी नहीं मरता। क्यों? क्योंकि उसमें रेजिलियंस होता है। आज का ये मेन शब्द जो आजकल चल रहा है वो है रेजिलियंस। रेजिलियंस का मतलब क्या होता है कि हमने बुरे अवसर से निकलना। कोरोना एक महामारी अभी चालू है, तो भी हमने जो रेजिलियंस जिसका ज्यादा होगा वही आगे चलेगा और वो आगे जाएगा। हम डिप्रेस क्यों होते हैं, या हम सुइसाइड थॉट्स जो हमारे मन में आते हैं वो क्यों आते हैं? एक, हमें कोई ब्लैकमेल करता है। दो, हमारे इंटीमेट फोटोग्राफ्स लोड करते हैं, जिस पे हमने विश्वास किया, जिसके साथ में फोटोग्राफ हमने निकाले, वो आज नेट पे लोड करते हैं। या हमारा बिजनेस फेल हो जाता है, हम कुछ करना चाहते हैं, उसमें हमें सक्सेस नहीं मिलता,
या हमारी रिलेशनशिप टोटली ब्रेक हो जाती है जिसका हमने विश्वास नहीं किया था। और ब्लैकमेल हमको करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, आई डिड नॉट सी इट हैपनिंग, मुझे नहीं लगा था कि इसने कुछ करना चाहिए। हम ये नहीं सोचते मैं ब्लैकमेल क्यों करने देना, मेरे फोटो अगर उसने इंटीमेट अगर डाल दिए हैं नेट पे तो डाल दिए, दैट्स बट दैट इज नॉट एंड ऑफ द मैटर। अब मैंने क्या करना चाहिए, फोटो तो वहां डल गए, द डैमेज हैज अकर्ड। हमने ये करना चाहिए कि ठीक है मेरा रिलेशनशिप था और ये जो है ये सच्चाई थी, मगर हमारा ब्रेकअप हो गया है, एंड देन गो टू द पुलिस एंड कंप्लेन। इंटीमेट फोटोग्राफ्स हम रखते हैं, क्यों रखते हैं, क्योंकि हमारा ट्रस्ट रहता है। और जब हमें कोई धोखा देता है ना तो हम पहले हम पे गिल्ट आती है, हमको लगता है कि मैंने ऐसा धोखा क्यों खाया। हमने ये क्यों नहीं सोचना चाहिए कि मैंने धोखा खाया, हम यही हार्प करते रहते कि मैंने धोखा क्यों खाया, मेरे साथ धोखा नहीं होना चाहिए था, हाउ डिड आई डू इट, इट कैनॉट हैपन टू मी। बिकॉज इन अ रिलेशनशिप यू हैव अ ब्लाइंड फेथ, एंड हम रिलेशनशिप के येलो और रेड लाइट देखना ही नहीं चाहते। जब भी हम रिलेशनशिप में रहते हैं तो हम हमारी स्पेस भूल जाते हैं और ये सोचते हैं कि दूसरा जो चाहता है वही सच है। सो ऐसा लगता है कि अभी मैंने मेरी जिंदगी का अंत कर देना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि मैं तो फेलियर, ब्रेक हो गई, ये मेरा फेल्यूर है। हम ये नहीं सोचते कि रिलेशनशिप ब्रेक हो गई है ये हमारे डिसीजन का फेल्यूर है, हम खुद को फेल्यूर मानते हैं। हम जाते हैं बाहर और हमको लगता है कि सब लोग मेरे ही फेल्ड रिलेशनशिप पे बात कर रहे हैं। वी बिकम मोर ऑकवर्ड इन इट। व्हेन वी कम होम आल्सो वी हैव अ गिल्ट, अनदर गिल्ट इज देयर, व्हाई आई शुड फेल। हम खुद के बारे में हमारा फेल्यूर एक्सेप्ट करना नहीं चाहते, मगर हम जब सोचेंगे ना कि ये फेल्यूर हो गया है, अभी मैंने आगे चल के और क्या करना चाहिए, हम उसी रिलेशनशिप में मेश में कल्डेसैक में घूमते रहते हैं। Why it should happen to me? Why it is not happening to others? Why me? It is not true. Probably he still has love for me. Why not accept it? हमने कोई भी चीज जिंदगी में अगर हमने एक्सेप्ट कर लिया ना तो वहां से ही शुरुआत होती है कि हम कोई चीज का सॉल्यूशन निकालते हैं। अगर हम कोई प्रॉब्लम को समझते ही नहीं, आई हैव फेल्ड इन वन पेपर, इट इज ओनली बिकॉज द पेपर वॉज हार्ड एंड वहां घालमेल था, वहां कोई घफला था जिसकी वजह से हम फेल हो गए। 20% फेलियर्स आर बिकॉज ऑफ दैट। व्हाई नॉट एक्सेप्ट? हमने रिवीजन के लिए डालना चाहिए, बट हमें एक्सेप्ट तो करना ही चाहिए। रेजिलियंस यानी हमारी एबिलिटी टू कम अप विद स्ट्रेंथ फ्रॉम एनी एडवर्स इवेंट। देखो कितने बार हम डिजास्टर देखते हैं कि कितनी जगह पे महामारी आती है, कितने जगह पे घर गिर जाते हैं, कितने लोगों के रिश्तेदार मर जाते हैं, कितने लोगों को यानी किसी के पिताजी मर जाते हैं, किसी की मदर मर जाती है, somebody gets कैंसर। मगर जहाँ रेजिलियंस रहता है वही फैमिली ऊपर आती है। वो सब लोग ये नहीं समझते कि अभी ये कुछ हो गया तो हमने क्या करना चाहिए। सो हाउ टू डेवलप योर रेजिलियंस, क्योंकि पहली स्टेप जो है हमको खुद को मजबूर नहीं समझना चाहिए। चाहे हम कितने भी गरीब हो और काम कर रहे हो तो भी हम हमारे वर्क प्लेस पे अगर कुछ गड़बड़ होता है तो हमने किसी को भी मजबूर नहीं समझना चाहिए। ये मजबूरी नाम से हम जब किसी चीज की बात करते हैं ना तो बहुत बार हम सेल्फिश रहते हैं। बताते तो मजबूरी है मगर असल में रहती है वो सेल्फिशनेस। तो हमारे जिंदगी में अगर कोई भी हादसा होता है या डिजास्टर होता है तो हमने क्या करना चाहिए? हमने, आप लोगों ने
Swada, did you hear this word SWOT test, SWOT? Yes? Kindly unmute and then you can answer, because I can only see the nodding. Ready? Okay. हाँ सर, सर So- एक फोन आला था पर हाँ हाँ, सो शॉर्ट टेस्ट जो होता है वो हमें जिंदगी में मैनेजमेंट में सिखाया जाता है. आई थिंक द मैडम वुड बी एबल टू टेल यू इन होटल मैनेजमेंट. शॉर्ट टेस्ट इज बेसिकली स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट. हमारी जिंदगी में, हमारी रिलेशनशिप में, हमारे कठिन अवस्था में, हमारे पेपर में कम भी मार्क मिलते हैं तो हमने खुद के लिए स्वॉट टेस्ट करना चाहिए कि मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, कि मैं इंटेलिजेंट हूं, मैं हार्डवर्किंग हूं. इस एग्जाम में मुझे कम मार्क मिले क्योंकि हो सकता है कि मेरी स्टाइल ऑफ थिंकिंग जो है वो, और ये एग्जाम का पैटर्न जो है वो शायद मैच नहीं होता. इसीलिए मुझे वो पैटर्न से काम करना पड़ेगा. मेरा वीकनेस क्या है? दैट आई एम नॉट कॉन्फिडेंट. जब भी मैं एग्जाम हॉल में जाता हूं तो मुझे लगता है मुझे कुछ आता नहीं है, मैं भूल गया हूं. एग्जाम कोई भी हम एक दिन के पढ़ाई से नहीं देते हैं, हम साल भर की पढ़ाई करते हैं. और डरते कैसे हैं कि कल मैंने वो चैप्टर नहीं पढ़ा, उसी की वजह से कोई ना कोई गड़बड़ होने वाली है. अपॉर्चुनिटी, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हमारे पेरेंट्स से मिलता है, हमारे पीयर से भी मिलता है. Because if we have a supportive team like Vaidehi, who has a supportive team, and that is the reason she is able to do so many things here. अगर नहीं तो वैदेही के मन में कितनी भी बातें रही कि ये मुझे करना है, वो मुझे करना है, मगर अगर वैदेही के साथ में आप लोग जो टीम वर्क है ना, ये अगर नहीं रहता तो वैदेही जिस प्रकार से आज ये कर रही है उस प्रकार से कर नहीं पाती. क्या होता फिर? वैदेही खुद का फेलियर मानती, वैदेही ये समझती कि ये मेरी गलती है कि आई कुड नॉट गेट अ प्रॉपर टीम. राइट? दिस इज व्हाट इज स्वॉट टेस्ट. एंड टी इज थ्रेट. थ्रेट क्या है? हम एग्जाम हॉल में जाते हैं, उसके पहले हमारे को रास्ते पे ये मालूम होना चाहिए कभी हमारी गाड़ी खराब हो सकती है. इज इट नॉट अ थ्रेट फॉर यू टू रीच योर एग्जाम हॉल? इट इज अ थ्रेट. So whenever we think of threat also in your life, हमारे रिलेशनशिप में भी वैसे ही करो कि हमारे रिलेशनशिप में ब्रेक ये थ्रेट आ सकता है. हमारे रिलेशनशिप में ये भी हो सकता है कि हम उसे कुछ दिनों के बाद पसंद ना करना शुरू कर दे, या वो मुझे पसंद ना करना शुरू कर दे. क्योंकि हम जब क्लोज एसोसिएशन होता है तो हमारी खामियां भी लोगों को समझती है. पहले पहले तो सिर्फ खूबियां ही समझती है. तो खूबियां और खामियां जब बराबर से नहीं होती तो आगे चल के प्रॉब्लम आने लगता है. तो जब भी हम जिंदगी में फेल होते हैं, अभी देखो हमने नया नया किस्सा सुना है सुसाइड का, जो बहुत सा महीनों से चलते आ रहा है टीवी पे. ये सुसाइड करने के लिए क्या जरूरत थी ये बताइए आप मेरे को. बड़े बड़े हीरोज रहते हैं, आप ड्रग एडिक्शन में गलती से जाते हो, या हो सकता है कि वो दूसरे धंधों में पैसा लगा देते और बर्बाद हो जाते हैं. मगर इन्होंने एक बार तो सक्सेस दिखाया ना. अगर ये खुद के एबिलिटीज पे उनका अगर विश्वास होता है तो उन्होंने सीधा बोलना चाहिए कि भैया मैं ड्रग एडिक्ट हो गया हूं, आई वॉन्ट टू कम आउट ऑफ इट. अगर हम ये डरते रहे कि अगर लोगों को पता चला तो क्या होगा, मेरे को फिल्में नहीं मिलेगी, लोग ऐसा बोलते रहेंगे. लोग कौन होते हैं? लोग आज हमें सर पे चढ़ाते हैं, लोग कल उतार देते हैं. तो लोग ये नाम पे हमने कुछ भी नहीं सोचना चाहिए. एंड उसके पास क्या नहीं था? पैसा था, एबिलिटीज थी, इंटेलिजेंस था, IIT ग्रेजुएट था, और क्या चाहिए? इन स्पाइट ऑफ दैट, one fine day, like a Arjuna, he felt he can't win. This is the battle which he must end. Probably he did not have Krishna behind him. He had all the friends which were who were not friends. They were peers but not friends.
अगर फ्रेंड्स रहते तो ये टीम वर्क अच्छा रहता, टीम वर्क अच्छा रहता तो हमारे दोस्त उसमें से भी हमें बाहर निकाल लेते हैं. सो डू नॉट ओवर ट्रस्ट. हम नेट पे जाते हैं और कभी कभी लोगों पे विश्वास करते हैं और वो बोलते कि मेरा वो नेट फ्रेंड ना मुझे अच्छा एडवाइस करता है. ये जो हमारा फेस है ना नेट का, ये बड़ा फेक फेस है. हमारे ये भी देखा गया, अभी आप देख रहे हैं कि फिल्म स्टार्स जो रहते हैं वो जो कैरेक्टर दिखाते हैं, आर दे हैव द सेम स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर इन देयर पर्सनल लाइफ? नो. अदरवाइज आत्महत्या जैसे हादसे होते थे क्या? इफ दे वेर सो स्ट्रॉन्ग इट डिड नॉट अकर. एंड दैट इज व्हाई डू नॉट बिलीव इन दैट. हमारे को जीना चाहिए. जीने के लिए एक साइंटिफिक तरीका भी मैं बताता हूं. जैसे मैंने स्वॉट टेस्ट बताया, वैसे डू यू नो जो हैरी विंडो? पहले मैंने जब ये पहली बार सुना ना तो मेरे को लगा कि ये जोहरी विंडो है, यानी जोहरी जो गुण परखता है. बट ये ऐसा नहीं है. इट्स अ जो एंड हैरी, देयर आर टू पीपल who formed this particular test. This is known as Joe-Harry window. Joe-Harry window has 4 quadrants and 4 quadrants में हमारे गुण हैं. तो there are certain things which you know about yourself and others also know about you. हमें मालूम है कि वैदेही में कैपेसिटी है और वैदेही की टीम में भी मालूम है कि वैदेही को कैपेसिटी है. So this is one corner which is you know and the others also know. The other thing is you don't know and the others also don't know. अरे क्या यार बराबर करेंगी क्या नहीं, और वैदिक को भी लगता है क्या मैं कर पाऊंगी. Right? There is a third window which is known as you know. Vaidehi was confident that she can do it. But still others were not confident. अरे वैदिक करेगी क्या? And the fourth window is you don't know but others know. वैदिक को लगता है कि शायद मैं नहीं कर सकूंगी, मगर हो सकता है राजसी ने बोला वैदिक को, वैदेही you have those guts, you have those qualities, you can do it, I am very sure, go ahead and do it. Whenever we have this Johari window, then we also know what is our strength, our weakness, what we can do and what we can't do. There are many things. अभी जब वैदेही ने ये टीम वर्क किया तो हो सकता है वैदेही को भी लगा होगा कि मुझे लगा नहीं है मैं इतने सक्सेसफुली कर सकूंगी या कर सकती हूँ, और बाकी टीम को भी लगा क्या हम सब मिलके इतना सक्सेसफुल हो सकते थे वैदेही के साथ. दैट इज अनदर पार्ट ऑफ इट. सो लाइफ में हमने ये हमारी गुण देखते रहना चाहिए. जब हम हमारी क्वालिटीज देखते रहेंगे ना तो हमारे दोष हमें कम लगेंगे एंड हमारा रेजिलियंस बढ़ेगा. लाइक सावित्री, यू डोंट एक्सेप्ट फेल्यूर बट वर्क ऑन देम. फेल्यूर तो एक बहाना है सीखने का. सक्सेस हमें कुछ नहीं सिखाता. सक्सेस हमें कॉम्प्लिसेंट बनाता है. For next 2 months, Vaidehi will have to work still more, because if she takes it कि ये मेरा सक्सेस है, कॉम्प्लिसेंट हो गई तो उसका फेलियर हो जाएगा. फेलियर हो गया तो फिर सब लोग बोलेंगे वैदेही ऐसा नहीं लग रहा था कि आखिरी आखिरी तो ऐसा करेगी, ऐसा लगा टेम्पो कायम रहेगा. एंड शी स्टार्ट्स फीलिंग दैट आई एम नॉट डूइंग समथिंग गुड. वो भूल जाएगी कि मैंने 10 महीने में क्या किया. वो भूल जाएगी कि व्हाट क्वालिटीज आई हैव. वो भूल जाएगी कि व्हाट आई कुड डू. वो भूल जाएगी कि मेरे साथ मेरे सारथी कितने हैं. एंड शी वुड लैंड अप विद प्रॉब्लम एंड रियली व्हाट शी इज डूइंग टुडे शी वोंट बी एबल टू डू इट ओनली बिकॉज शी गेट्स दिस फीलिंग. और हमें ये पूरा फीलिंग निकाल देना है, पूरा मन से निकाल देना है. बहुत बार मैंने देखा है हमारे यहाँ काम करने वाले लोग बहुत मजबूर रहते हैं. वो जीते हैं मगर किसी किसी का पति, मेनी स्टूडेंट्स विच आर देयर, ओके, दे कम देयर, दे अटेंड कॉलेज
They don't have money for even paying for the college fees also. उनके घर में भी उनके बुक्स खरीदने को उनके लिए पैसे नहीं रहते, फिर भी वो सोचते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ. सो दैट इज व्हाट इज नोन एज रेजिलियंस. हम देखते हैं बोर्ड की एग्जाम में कौन पहला आता है. जरूरी नहीं है कि कोई भी आई कैड और इधर से जाने वाले ही लोग पहले आते हैं. कभी कभी तो हमने देखा है कि जिनके पास कुछ भी नहीं रहता वो भी सक्सेस करते हैं. तो क्यों वो जीना चाहते हैं? नॉर्मल कोर्स में, हमारे भाषा में, हमारे विचारों में उनके पास कुछ भी नहीं है, पैसे नहीं है जो हम चाहते हैं, घर में रहते हैं, वातावरण नहीं है, माँ बाप पढ़े हैं क्या? माँ बाप भी पढ़े नहीं है, फिर भी वो जिद से जीते हैं, जिद से सक्सेस करते हैं. तो इसीलिए लाइफ इज अ मिक्स ऑफ सक्सेस एंड फेल्यूर, जॉय एंड सॉरो. यू हैव टू ट्रस्ट डे एंड नाइट. याद रखो, डे इज फॉर रिजॉइसिंग एंड नाइट फॉर प्रिपरेशन एंड क्रिएटिंग स्ट्रेंथ. क्योंकि जब तक रात है तो हमें बहुत दुख होता है, डिप्रेशन होता है, मगर ये कभी भी देखो कि उसके बाद सवेरा तो आता ही है. और जब हम दिन में देखते हैं ना तो हमें क्या लगता है, ऐसा ही दिन जाएगा, जिंदगी ऐसे ही सुंदर लाइटेड रहेगी, जो भी कुछ है. मगर होता क्या है, रात आती भी है. मगर हम क्यों भूल जाते हो कि रात भी ब्यूटीफुल होती है. The stars which you see in the sky, you can see only in the night. Okay? So your qualities you can see only when you are failing. You don't see your qualities when you are succeeding, because तुम्हारा ईगो बढ़ते जाता है और तुम्हारी क्वालिटीज तुम्हें ये नहीं होती है, समझती नहीं है, और वो उसको डार्कन करती है. Whereas where you are failure, then things are different. So my dear friends, you can call us when you are feeling low. Every association, even NOGS, even our IAP, our AHA, they have, I think, numbers which can be called when people are in depression. You please don't become slave. Don't become dependent on somebody, whether he is your fast friend, girlfriend, or boyfriend. अपनी अपनी जगह खुद बनाओ. बी मास्टर ऑफ योर सेल्फ एंड डोंट डू इट. जो हमने एक पुराना गाना है किशोर कुमार का, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया. ये जिंदगी का मकसद रखो, कुछ भी हो जाए, हमारे पास पैसा है क्या, हमारे पास सक्सेस है क्या, हमारे पास नाम है क्या, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर हमारी जीने की इच्छा कितनी पक्की है, हम कैसे जीना चाहते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है. अगर वो रहा तो हम कितने भी एडवर्स हमारे पास हमारे ऊपर परिस्थिति आएगी तो भी हम उससे निकल सकेंगे. और कभी भी सुइसाइड का थॉट भी कभी भी नहीं लाना, क्योंकि जिंदगी खत्म करने से सवाल आप दूसरों के लिए छोड़ जाते हो. अपने लिए तो शायद आप समझते हो कि मैंने एक सवाल का जवाब ढूंढ लिया, मगर बाकी लोगों के लिए कितने सारे सवाल छोड़ जाते हो. इसीलिए मैं ये कहता हूं कि कुछ भी हो जाए, ये समझो मुझे जीना ही है. थैंक यू वेरी मच. यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस. It was a very enlightening session, full of positivity and optimism. I request chairperson for today, Urvashi ma'am, for her concluding remarks. Urvashi ma'am, you need to unmute. Dr. Urvashi, please unmute. I was muted by the host. Okay. Thank you so much, sir. It was a very wonderful talk. And you've touched a few points
I think people would be having some questions. We haven't received any questions, but I really think it was a wonderful session by Dr. Nishikant Kotwal ji. There are few points that came to my mind while you were talking, sir, especially the reasons for suicide. Generally teens में suicide का होता है lack of money in the family, financial problems, failure in academics and love affair. तो जैसे आपने बताया मनी इन द फैमिली, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स, बहुत सारे हम केसेस पढ़ते रहते हैं कि मम्मी ने स्कूटर लेके देने से मना कर दिया इसलिए द सन हैंग्ड हिमसेल्फ. बट why don't you have the guts to face the reality and work for your things yourself is something we need to understand ourselves and teach our children कि सेल्फ डिपेंडेंट रहना चाहिए. पेरेंट्स विल नॉट बी सपोर्टिंग यू ऑल योर लाइफ, और रादर नोबडी वुड बी सपोर्टिंग यू ऑल योर लाइफ. So this could be inculcated in the children. Then failure in academics is, जैसे सर ने बताया, keep analyzing yourselves. SWOT analysis करते रहेंगे तो आपको पता रहेगा कि आपकी कहाँ कमियां हो रही हैं और उसको आप कहाँ improve कर सकते हो. And a very sensitive issue with the teens today is a love affair. I know it is very, very difficult stage where you very well fall for the other sex and you find it very intriguing. But somebody you meet at that time cannot be the reason to die, because your life has been given to you by the parents. जो भी आपने 12-15 साल की जिंदगी या 18-19 साल की जिंदगी निकाली है वो आपके पेरेंट्स की दी हुई है. अभी तो आपने अपने लिए कुछ किया ही नहीं है. तो जब आप अपने लिए कुछ कर लेंगे तब चॉइस ये आपके हाथ में आ जाती है. जब तक तो आप माँ बाप के सर पे रह रहे हैं तब तक तो चॉइस ये है ही नहीं कि हमें मर जाना है किसी भी बात के लिए. So respect the ones who have given birth to you and who have raised you. That is very, very important, because हम अपने प्यार और आशिकी में ये भूल जाते हैं कि हमारे माँ बाप हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा अहम हिस्सा है. हम उन्हें छोड़ नहीं सकते जस्ट बिकॉज जिंदगी में एक धोखा हो गया. I always tell everybody that life gives you two choices in every space. Now, which choice you take will become consequently your destiny. तो आप अपनी choices को बहुत सोच के और समझ के अगर लेते हैं तो ऐसी स्थिति में आप कभी आते ही नहीं हैं जहां आपको एकदम टर्मिनल डिसीजंस कुछ लेने पड़ जाएं. तो ऑलवेज कीप अ बैलेंस्ड लाइफ एंड चूज वेल इन लाइफ. जो इजी वाला रास्ता होता है वो बहुत अच्छा दिखता है, सुहाना दिखता है और लगता है कि अरे वाह इसमें तो कोई ज्यादा तकलीफ नहीं है, लेकिन वो रास्ता दलदल की तरफ जाता है. हम धीरे धीरे उसमें फंस जाते हैं. तो अगर हमने डिफिकल्ट वाला रास्ता चूज किया तो शुरू में शायद थोड़ी सी मुश्किल होती है, पर वो एक बार आदत पड़ जाती है उस रास्ते की तो आगे आपको अच्छी व्यू भी मिलता है, दलदल नहीं दिखाई देती है, गुलशन मिलेगा. So these are few things which I think students and youngsters should keep in mind. तो सर मुझे आप ये बताइए कि इसमें हम बच्चों को ऐसा क्या बता सकते हैं जब they start respecting what they have. आपने बोला कि gratitude and तो होना ही चाहिए, attitude of gratitude, yes, but then उस टाइम पे ये सब चीजें ध्यान में नहीं आती जब ये प्रेशर आ जाता है उन पे. एग्जैक्टली आपने दो सवाल अच्छे से किए हैं. एक तो एकेडमिक्स का फेलियर. तो एकेडमिक्स के फेलियर के लिए वी हैव टू ऑलवेज टेल देम दैट यू डोंट पास बाय जस्ट स्टडीइंग एट द एंड. यू विल हैव टू हैव अ रेगुलर स्टडीज एंड यू शुड हैव स्टडी स्किल. और स्टडी स्किल के लिए या स्टडी करने के लिए हमें मोटिवेशन की जरूरत होती है. एंड द मोटिवेशन आइदर कम्स फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेस और फ्रॉम इंटरनल सोर्सेस. इंटरनल सोर्सेस कैसे रहते हैं कि आई वांट टू बिकम दिस. This is your internal motivation. And external motivation is कौन बनेगा करोड़पति के पैसे मेरे को मिलाना है. So that becomes my external motivation to work on something. Secondly, as you said कि बहुत बार बच्चे पैसों के इससे सुइसाइड करते हैं.
that their parents did not give them money for buying a scooter or something. Because the unfortunate part is we do not let them know what is our exact economical condition. We always do not involve them in that. We say, तेरे को क्या चाहिए, मैं देने को तैयार हूं, मुझे नहीं मिला. That's very wrong. You must tell them what you can do, what you cannot do. He might say, आप failure ये दे भी नहीं सकते. You have to say, this is the fact. So you have to accept it. Once you don't accept, हम कहीं ना कहीं से लोन निकाल के बच्चे को देते हैं, next time वो कार मांगता है. Correct. So this goes on because now you have spoiled his mentality. He has spoiled his thinking. Another thing is romantic relationship. You said romantic relationship में क्यों ऐसा लगता है? उसने धोखा दिया, इसका हमें दुख ज्यादा होता है, और फेल्यूर का धोखा होता है. हमें ऐसा लगता है कि I was smart in the sense behavior. I was smartly behaving. I had everything. I did not see it happen. So how can I fail? So when you don't accept. मेरे को क्वेश्चन है, जैसे इजी मनी वाला आजकल बहुत कॉन्सेप्ट है. दे सी इट ऑन फिल्म्स आल्सो, मीडिया में भी. मतलब जो हमारा आप बोलिए जो ये टीवी शोज हैं, उसमें भी एवरीथिंग इज सो ग्लैमरस. इवन इफ दे आर शोइंग के बहुत फाइनेंशियली लो फैमिली से है, बट दे लुक सो ग्लैमरस. आई थिंक, डोंट यू थिंक दैट अट्रैक्ट्स द चिल्ड्रन एंड दे डोंट रियलाइज दैट दिस इज जस्ट आर्टिफिशियल? दे डू रियलाइज, मगर सपने देखना ही रहता है उनको. और आजकल इतने सस्ते में भी हम ग्लैमरस रह सकते हैं, मगर वो दिखावा रहता है. बिकॉज अल्टीमेटली क्वालिटीज डू मैटर. देन अनदर थिंग इज व्हेन दे choose their partner, and when they realize that things are not moving properly or they have done a wrong thing, they do not take a proper decision to break it at that time. Correct. And when somebody breaks it, you don't like to review it and see that it was going to break. Why not accept it and let us start afresh? आपने जैसा बोला कि उनको वो ग्लैमरस लगता है, उसके बारे में मैं एक सिंपल इसमें बताता हूँ. हर हिंदी पिक्चर में जो विलन रहता है ना, उसके पास 4 गर्लफ्रेंड्स रहती है स्टार्ट ऑफ द पिक्चर में, और हीरो जो रहता है वो पूरी मेहनत करता है और एंड में उसको हीरोइन मिलती है. वो भी बड़ी डिफिकल्टी से. सो द बैड पीपल, द ब्लैक side always attracts and the positive side does not. So you always get attracted. हमें हर एक को, इसको हम मोह बोलते हैं, हमें हर एक को लगता है. But when you think about it, that's why the SWOT analysis, what I can get, what I cannot get. फिर हम क्या करते हैं, जब वो ऐसा नहीं होता तो हम झूठी दुनिया में जाना चाहते हैं. So what? Then I steal to show my girlfriend that I can take you to the hotel. I don't show them my parents because I don't like my parents because they are all गरीब. फिर मैं मेरे घर नहीं बताता हूँ, या तो उसके बारे में भी झूठा बोलता हूँ. Unless and until children come to know that they have to accept what it is, that ये हमारी इज्जत नहीं जाती है इससे कि मैं गरीब हूँ. उन्हें यही लगता है कि नहीं यार वो अमीर है, इसके लिए उसके पीछे जाते हैं. मगर अमीर के पीछे जाने वाले 80% शायद सेल्फिश हो, 20% may be real. Because one of my clients was saying, they are very rich, हमें ना सच्ची दोस्त नहीं मिलते. Sir, please tell them how to handle rejection, because rejection is something they are unable to handle. Yes. And तो उसके बाद उनको लगता है कि ultimately suicide is the only thing because I can't face it. Yes. Rejection में पहली बात तो ये है, the first thing which they have to think is acceptance. We have to teach them to accept failure, accept that the relationship has failed. Okay. Once they are rejected, they don't want to accept. What they do is they try to tell, ये ऐसा हुआ ही नहीं.
and then start blaming ourselves for that rejection. So they don't understand that God has a better plan for them. Yes, and your self-esteem, they have a low self-esteem. They have, again we come down to SWOT test to understand that what their self-esteem is. Once they know their strengths, then they would definitely understand that yes, I can handle it. This is a break. It was not my fault. Yeah. Why should we? Since यहाँ पर जैसे हमारे पास साथ में बहुत सारी कॉलेज की गर्ल्स जुड़ी है, वुड लाइक टू हैव योर ओपिनियन ऑन दिस कि इफ दे हैव देयर गोल्स सेट, जैसे शॉर्ट टर्म गोल्स हैं या फिर लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, सो इफ दे सेट दिस एंड दे हैव द एम टुवर्ड्स लाइफ, प्रोबेबली डिस्ट्रैक्शन कहीं और होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाएंगे, या फिर दे विल हैव अ प्रॉपर गाइडेंस थ्रू आउट हाउ दे हैव टू लीड देयर लाइफ. Yes, that is very true, because we must make good friends. And the romantic relationship में यही हम बताते हैं कि if it is diverting you from your goals, exactly, then you have to understand that is what we call it is a yellow signal. Okay, if your partner is trying to comment on your dresses, is trying to handle your time, trying to handle your timetable also, and is not helping you in achieving your goal, then it is a yellow signal. You have to understand before he does anything, because he is going to do it, because he is going to do it. This is not a relationship which is really serious. Why? Because he is not thinking of you. He is not thinking of your goals. So you shouldn't, but you should not forget your goals. He is trying to handle you. Yes. So that is incorrect. That is the time to pack up. Yeah, yes. That is the time to pack up, whether you like it or not. Yes. And you have to accept that. देखो, एक जमाना था कि डाइवोर्स कभी एक्सेप्ट नहीं होता था. ओके, डाइवोर्स लिया तो पूरा जमाने में, पूरे मोहल्ले में ये होता था कि इनके घर में ना डाइवोर्स हो गया. It was a very bad thing at that time, but things have changed. Okay, so the girls and the boys have to understand breakups are normal and you have to go ahead, because breakup is, why patch it up? Because when really a breakup happens, I think behind that there are 10 attempts to patch up. So let's have a breakup party and then move forward. Sir, आजकल ये रिवाज है ना, breakup party and move forward. Yeah, breakup parties are it's a trend. It's a trend. Yes, it's a trend. True. हाँ, तो मैंने वो अभी एडवर्टाइजिंग में सुना ना कि वो लड़की आती है दौड़ दौड़ के और अपनी सहेली को बोलती है, अरे तू बड़ी खुश दिख रही, क्या है? तो बोले आज मैंने ब्रेकअप कर ही दिया. But that shows one thing. Creates a lot of pressure on your mind that I am holding on to a relationship which is not very compatible, so and I need to get out of that. Absolutely, absolutely. उसका जो pressure है, that leads to a lot of depression and all wrong thoughts probably. We have formulated certain red flag signs: green, yellow, and red. So you can put your relationship into that and try to know what type of relationship you are handling. There are few questions which I said, that if somebody is encroaching on your ideas, somebody encroaching on your usual dresses, somebody is encroaching on your time, somebody is encroaching on your goal, somebody is not allowing you to mix up with your friends because they don't trust. So when this occurs, when your personal space is lost, it is a time that you should understand this is a red signal. So you should take a proactive step and don't bother about what people would say. Normally हम बोलते हैं दोस्त क्या बोलेंगे, सब तरफ हो जाएगा, कॉलेज में तो पूरी तरफ हो जाएगा कि इसका ब्रेकअप हो गया. It doesn't make any difference because I have to think about myself first. I think about log, and there is nothing like log. सर लोग क्या बोलेंगे, अगर ये भी हम ही सोचेंगे तो लोग क्या सोचेंगे? तो उनको थोड़ा कुछ तो दो देना चाहिए और हमको अपना ही सोचना चाहिए. I always tell my students also that mind your mind before your mind minds you. So there should be a control over your mind
when you feel that things are not moving as per your this thing, you should take a foot down and not succumb to whatever the pressures are. So you have to have a control over your mind in everything. I have a presentation which I had done in international course also on relationships. Okay. So what is the science behind relationships, how they develop, and what are the neuroscience behind different relationships between parental relationships, romantic relationships, and why depression ultimately occurs, if at all it occurs, then why there are hormonal changes which do occur, because you keep on thinking and thinking, not good about it, but bad about it, that वो मुझे छोड़ देगा, वो मुझे छोड़ देगा, वो मुझे छोड़ देगा. So ultimately that leads to that Feeling depression. of rejection is Yes. अब लॉस तो लॉस होता है, हमारी डॉल भी रहती है, लॉस होती है, हमारा पेन भी लॉस होता है ना, तो हमें दुख होता है. तो ये तो समझ लो कि रिलेशनशिप अगर टूट गई तो दुख तो होगा. सो एक्सेप्ट करो, मुझे दुख हो रहा है. आई एम हैप्पी दैट रिलेशनशिप हैज ब्रोकन, बट देन आई एम हैप्पी दैट इट इज नॉट वर्किंग, सो आई हैव ब्रोकन इट और ही हैज ब्रोकन इट. Sir, how would you explain the effect of social media on these depressing thoughts and suicidal tendencies? हमें ये बच्चों को सिखाना पड़ेगा कि हाउ टू रीड मीडिया. क्योंकि देखो, सिंपल सी बातें रहती हैं, कुछ अच्छी भी रहती है और कुछ बुरी भी रहती है. बहुत प्रोटीन्स की ऐड रहती है या DHA वगैरह की ऐड होती है कि इससे तुम्हारी बुद्धि बढ़ेगी. मीडिया इज अ वेरी पावरफुल मीडियम. इट कैन स्पॉइल योर, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट मीडिया डजंट शो ईच एंड एवरीथिंग. Even suicide or rapes which are shown is only to increase TRP. They are not really interested in solving the problem. You get affected by it. And so you have to understand. अभी मैंने पेपर पढ़ना ज़्यादा बंद कर दिया क्योंकि मेरे को ऐसा लगा कि वो पेपर में दिया वो मेरा ओपिनियन हो रहा है और मैं लोगों को बताने लगा कि नो दिस इज दिस, ये इंटरनेशनल ऐसा ऐसा होना चाहिए और पढ़ा ही नहीं है मैंने. सो दिस इज हाउ इट अकर्स. सो मीडिया में गलत हमारी चैनल्स बहुत ये बताते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसा होता है. हम स्पेशली मैंने ये देखा है क्योंकि माय चिल्ड्रन आर देयर एंड आई हैव गॉन टू मेनी कंट्रीज. हम हमारे लोगों को ना रिस्पॉन्सिबल सिटीजन कभी नहीं बना रहे. हम हमारे बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी नहीं सिखा रहे. वहां जो हम बोलते हैं वहां क्या है, 14 साल के बाद बाप बच्चे को बाहर निकाल देता है. वो बाहर नहीं निकालता है, वो उसे रिस्पॉन्सिबल बनाने की कोशिश करता है. और हम क्या करते हैं, वी ट्राई टू ऑलवेज शेल्टर देम. सो इन अ रिलेशनशिप वॉट एवर मनी ही हैज टू अर्न एंड स्पेंड ऑन द गर्ल. तो हमारे यहाँ क्या होता है, झूठा हुआ दिखाने के लिए हम चोरी से पैसे ये करते हैं और लड़की को दिखता भी है कि ये गलती से ये कर रहा है, फिर भी वो उसको बुरा नहीं मानती. कितनी बार मैं देखता हूँ कि लड़के और लड़कियां रॉन्ग साइड जाती है. कभी कभी मुझे दुख होता है, ऐसा लगता है लड़कियों के बारे में देखने का मेरा रवैया अलग है. ऐसा लगता है कि ये लड़की इसको डांटती क्यों नहीं, कि व्हाई आर यू गोइंग ऑन अ रॉन्ग साइड एंड शी इज आल्सो वेरी हैप्पी व्हेन ही इज डूइंग इट. इज इट नॉट रॉन्ग? सर माचो फीलिंग आती है ना लड़कों को और लड़कियों से इम्प्रेस हो जाते हैं. माचो एकदम. तो अपने यहाँ माचो फीलिंग का मतलब है लीगल सब जो रूल्स है वो तोड़ना. दैट इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट. करेक्ट. It is not that. It is the quality which gives you that feeling, not breaking rule. Breaking rule will be any bunda breaks it. करेक्ट. हाँ, अट्रैक्ट तो होता ही है. मैंने जैसे ही बोला निगेटिव चीजों पे आदमी का अट्रैक्शन ज्यादा होता ही है. जब कोई सिग्नल पे नहीं हो तो तोड़ने का मन तो करता है, मगर हम सिविलाइज्ड रहे तो हम रुक जाते हैं. बट तोड़ने का मन एक क्षण भर के लिए तो आता ही है. That is how negative attracts you. Again, a matter of choices, sir. Yes. So that is why you have to choose in your life. It attracts, no doubt about it. No doubt about it. और ये रियलिटी अपने को होना चाहिए कि ये मेरे को अट्रैक्ट हो रहा है. But then immediately I have to analyze: is it correct? Is it fitting into my goals?
Am I going to get diverted by to this? How will that affect my whole life? That we have to see. मगर पुराने जमाने से वो थिंकिंग का अपन ने वैसे परकोलेट नहीं किया है, अनफॉर्चुनेटली. हमें वो करना चाहिए. रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाना ही चाहिए. और वो माँ बाप पान ठेले पे जब गाड़ी खड़ी करते हैं ना, तब दिखता है मेरे को रात को. जितनी बड़ी गाड़ी उतनी आड़ी टेढ़ी गाड़ी. करेक्ट. ओके, सो दे फील. और बच्चों को क्या लगता है, रूल तो ब्रेक करते ना, पिताजी दे दो ना उसको कुछ पैसे, क्यों आप झंझट कर रहे हो. एंड देन वी से कि हमारे बच्चे, हमारे यहाँ लोग बराबर डिसिप्लिन नहीं है. दैट इज रॉन्ग. हम सिंगापुर जाते हैं, वहां का क्लीनलीनेस देखते हैं, वहां थूक नहीं सकते. एयरपोर्ट पे जितने भी फ्लाइट से ये लोग आते हैं, पहले काम करते हैं कि एयरपोर्ट पे थूकते हैं और बोलते क्या यार वहां कुछ जगह भी नहीं थूकने की, एज इफ इट्स देयर बर्थ राइट. तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहिए पड़ेगा ना लोगों को. एंड सो लाइफ में आएगी. सो नेचुरली वी विल थिंक रिस्पॉन्सिबली इन रिलेशनशिप और एनीथिंग. It is जैसे SWOT टेस्ट है, it is applied to every aspect of life. Johari window is applied to each and everything in your life. It is not only in one aspect. Please continue, madam. Yeah, sir, you said ki rejection hai, whatever, feeling bad, feeling depressed, you accept it. Meaning, what do they do? You accepting. आम्ही सांगितलं सोपं आहे, तू accept कर, but meaning what? What they should do? That it is the end now. Okay, she has to analyze and go ahead. Otherwise, you linger on that relationship and you keep on thinking that this is not happening. The worst thing which happens initially is you are not ready to accept that this breakup has occurred. You feel that there is still a chance that you can patch it up. So don't tell them that you accept it. You accept that this event and go ahead. So what I'm feeling is when they are depressed, their capacity to rationalize and analyze things is lost. Yes. They're all the time feeling low. So telling them, "Agar aisa karu nako, aisa mat kar." No. So you have to try to tell her only her positive things. That's why SWOT test में जो उसकी strength है, keep on telling her what are her strengths, what she wanted to become, what she can do, what education she had, what she could have. अभी उसने ट्रॉफी मिली या तू जब गई थी कितना कॉन्फिडेंटली काम किया था. Okay, so try to remind her what are her strengths first. So that will be a parent's role. That as a parent or as a teacher we can do, but what they should do on their own. Maybe they're not confiding with their parents ki mala asa tras hai, whatever. So we give them some tips and how to like. Yes, first thing is there should be a good communication between the parents. They should be able to listen. What happens is many times parents don't listen. What happens when a girl or a boy comes down to you and tell that I had a relationship and I have broken and that is why I'm depressed? What thought comes to your mind? That she cheated me, she did not tell me. But you have to accept that the child has come to you. So first thing what you have to do is support the child. But what we do, we say, तू अशी कशी केलं, तू आतापर्यंत आमच्यापासून लपवून ठेवलं, असं करायलाच नको होतं, तू पहिले सांगितलं असतं तर मी पहिलेच तुला सांगितलं असतं, वगैरे वगैरे. Instead of that, if we say, okay, you have come to me, I'm glad that you have come to me. Whatever has happened, let us talk about it later. And then ask her what are the things which have happened. If she tells initially, because I am telling you, the first thing is guilt and another thing is you do not accept it. You always are in that mind, this is not happening to me. I have heard about breakups, but this is not happening to me. So you have to tell them that failures are going to be there. The way we get less marks in examination, the relationship failures are also going to occur. And but if the child feels like lying all the time,
then how do you handle that? There are children who would just lie for everything. Then how do you handle that? First thing is communication. Initially, it has to start, and you have to tell them about what you can do for the child, what you cannot do for the child. What are your boundaries? What is acceptable? What is not acceptable? But not as a discipline. Unless and until we don't tell them, what they would do is, when they come to know that you don't like it, they will lie. But initially, only in the upbringing, you have to tell them what are the boundaries, what is acceptable and what is not acceptable. For marriage also, we don't tell them what is acceptable. तुझा choice आहे तू करू शकते, and then we don't accept their choices. So, but we have yes. So I was asking what a child should do. I understood your point of view that what parents should do or what teachers should do. What that child who's depressed at that point of time should rationalize her thoughts and how she should, like you said, accept accept that this has happened. But how? No. First thing is, see, once you identify that this has happened, then that is the first thing, first solution, I would say. Once basically they are not ready to accept. Once they accept that this is happening, then they have to think that is it their fault that it has happened? Usually they blame themselves, and that is why they don't come up. So they have to analyze, is it their fault? Once they analyze it in a positive way, that it was not their fault, rather it may not be his or her fault also. Okay? But the expectation from both the parties were totally different. And once they do that, this can happen only when they, what I am saying is accept, means accept that this has happened. Okay? Once they know this has happened, then only they will not start blaming themselves only. They would say, they will analyze, and then they will be able to see that, yes, okay, fine, this has happened. How I can go ahead? हमने अगर हमारे एग्जाम का अगर फेलियर माना ही नहीं, तो नेक्स्ट टाइम हम ज्यादा पढ़ाई कर नहीं सकते. राइट? वी विल कीप ऑन ब्लेमिंग यूनिवर्सिटी, पहचान, इसको ज्यादा मार्क मिले क्योंकि वो गोरी है, मैं काला था, ये लड़की है, लड़का था. We start blaming. The same thing in relationship. When you accept that it has broken, then only know, then you start blaming yourself. तो ये blame game ही डिप्रेशन में डालता है. I should have done better. मैंने उसका कहा माना रहता तो, मैं पार्टी जाते रही रहती तो वो मेरे साथ चिपका हुआ रहता. या द रिवर्स वे, राइट? मैं जैसे ही मैंने मना किया वो ऐसा हुआ, बट वाज आई कंफर्टेबल विद दैट सिचुएशन? नो. Then it is okay. Then they gradually come out of it. It is not so easy the way I am seeing. Okay? It is difficult. But unless you accept that this has happened, बेटर ये कहते कि ऐसा हुआ ही नहीं, वो वापस आएगा, मुझे कहेगा. और you go there and you try to tell them, अच्छा तू जो बोलता है ना वो सही है, मैं वैसे ही करूंगी. So that is a wrong thing, because that breakup cannot be patched up. Because initially also you got the signs of breakup, but you never took it. There were things you were uncomfortable with, but you never accepted it कि मैं uncomfortable हूँ, उसके लिए कर रही हूँ, या वो बोल रहा उसके लिए कर रहा हूँ. For a girl or a boy, both I am talking. क्योंकि लड़कों को भी लगता है कि वो लड़की ज्यादा लोगों के साथ घूमती है, वो भी प्रॉब्लम आता है. लड़की को भी लगता है कि लड़का ज्यादा फ्लर्ट है. I mean, anything can happen. And they have to know one thing, you have to just keep on saying, what was your goal? ये relationship break हो गया, but was that your goal in life? Your goal was to study, to go to England or to go to America or to go to IIT or whatever it is. That was your goal. This was not your goal that you should be worrying about so much. रिलेशनशिप ये जिंदगी का गोल तो कभी था ही नहीं, और वो रहना भी नहीं चाहिए. और अगर हमारे गोल के पास वो रिलेशनशिप नहीं ले जाती, सो देन टेल हर
that you have to accept that this was a bad relationship. So any more questions? No. Yeah, Dr. Urvashi. Yes, there are no more questions, sir. Thank you so much. You explained everything very beautifully. And Thank I'm you. sure the young blood must have realized where they are falling short. Somebody has raised hand, Reena Saha. One moment. Yes. I'll unmute everyone now. Just a moment. Reena, I'll unmute you. Yeah. Hi, So you all can unmute and talk one by one. हाय वैदेही, हाय डॉक्टर, गुड आफ्टरनून डॉक्टर कोतवाल। मैं एक एज अ ऑब्जर्वर मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रही थी कि रिसेंटली जो ये एक एपिसोड हुआ ना सुशांत सिंह राजपूत का, कैन यू हियर मी? Yeah, we can. Speak a little louder. Okay. I can hear you. Okay. सुशांत Okay. सिंह राजपूत का जो एपिसोड हुआ, हाँ मैनी जी. पीपल वर ऑब्जर्विंग, खास करके मेरे स्टूडेंट्स का मैंने देखा कि दे हैड चेंज द डीपी। जब तक उसको न्याय नहीं मिलेगा तब तक के उसका उन्होंने प्रोफाइल पिक्चर डाल के रखा था, ऐसा एक ब्रूडिंग ओवर समथिंग। तो ये जो उसमें एपिसोड हुआ कि द गर्ल